Guys, please give us a round of applause. Thank you. आसिफ कहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है? कहाँ चल रहा है? अभी तो Thank you. All right. Thank you, our lovely speakers. And it's time for me to say bye, and I'm going to call another sweet host for the day. Priyal, could you please take over? Thank you. Have a good evening. Everybody, a quick round of applause for Shruti here. Shruti, thank you so much. All right. So now it's time to learn about how to make money in this economy. Who would like to make money? Yes? Like we had before Christ and after Christ, AD and BC, right? We have before COVID and after COVID, don't we? So now we are going to talk about market economy post-COVID-19. And the first person in our panel that I'd like to invite on stage is Mr. Pranjal Kamra. He's one of the top financial experts in India. He's also a seasoned value investor who continuously works towards empowering investors by disseminating financial education through his YouTube channel, which has over 1 million subscribers. He hails from Raipur, started his content creation journey in 2017 and made more than 60 videos in over 8 months and gained 1,000 subscribers on YouTube. Congratulations for that and a lot more to come. Our next guest that I'd like to invite on stage is a finance content creator who has over 1.3 million followers on YouTube, Miss Neha Kagar. Welcome, Neha. Our next panelist today has over 30 years of experience in finance industry. He's a Josh Talk speaker. He's the founder at Arch for Kal YouTube channel with over 16 lakh subscribers. He recently wrote a book, 13 Swing Trading Strategies, which is bestseller on Amazon. He successfully conducted 300 plus financial literacy programs, educating approximately 1 lakh people. Now, he's on a mission of educating 25 lakh people by 2025. Please put your hands together for an investor, trader, and an author, Mr. Pankaj Ladha. Welcome, sir. And last but not the least, let me invite the founder and CEO at MarketFee. He's also a YouTuber. He is from NIT Jamshedpur and he's come here all the way from Kochi, Kerala. And he believes whether the market is bullish, bearish or sideways, he always makes profit. Please put your hands together for Mr. Sharik Shamshuddin. Over to you, Sandra. So, मुझे मॉडरेटर बना दिया है ताकि मॉडरेशन क्या am I audible? Is it audible? Yeah. So this is the first time कि मैं सवाल पूछने वाला हूँ. यहाँ कोई पॉलिटिशियन नहीं है वरना बताता मैं. सब अच्छे अच्छे लोग हैं. So
कितने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, कितने लोगों ने कोविड में शुरू किया? ओके, कितने लोग प्रॉफिट में हैं? ओके, तो जो प्रॉफिट में उनका हाथ बहुत देर तक उठा हुआ है। सो इससे ना मुझे समझ में आ रहा है कि हम इन्फ्लुएंसर्स काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे मैं तो ठीक ठाक ही कर रहा हूँ। बट यू नो ये मेरा पहला सवाल था आज के पैनल से कि क्या कोविड के बाद और कोविड से जैसा मार्केट रहा है, क्या रेकलेस हो गए हम, ज्यादा एयरटेक्स हो गए? जिस कोविड के समय आई, क्या वो रेकलेस है? डू दे थिंक इट्स इजी टू मेक? आई थिंक कोविड के बाद ही 70% नए इन्वेस्टर्स आए हैं। जैसे ज़ीरोधा ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि जितने इन्वेस्टर्स उनके पिछले 7 साल में आए थे, उतने ही उनके कुछ ही महीनों में कोविड के टाइम पे आ गए थे। तो ये जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं, ये कैसे आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि एक तो उनके पास फ्री टाइम था कोविड में, और उससे पहले भी काफ़ी सारे रीज़न हैं। जैसे हमारे हाथ में जियो आ गया था, स्मार्टफोन आ गए थे सबके हाथ में, तो इजीली एक्सेस हो गया था हमें सारी फैसिलिटीज़ को। और डीमेट को आए हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं था, 20 साल ही हुए थे, तो ये होना ही था। बट कोविड की वजह से ये शायद पहले हो गया कि इतने सारे इन्वेस्टर्स एकदम से आ गए। तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जैसे कोविड आया था, तो उस वक्त जब हमारी मार्केट 12,000 के आसपास थी, तो विद इन 2 मंथ जब कोविड डगमगा रहा था, 4,500 पॉइंट्स नीचे चली गई थी। बट फिर आता है 2021, तो 2021 आते आते मार्केट एकदम डबल, इवन कुछ महीनों में ही डबल हो गई थी। तो उस वक्त जब ये मार्केट में देखा कि भाई पैसा ना बहुत जल्दी डबल हो रहा है, तो फिर नए नए इन्वेस्टर्स आते रहे। एक तो उन्होंने रिटर्न्स देखे कि मार्केट भाई 4,500 पॉइंट्स नीचे आई थी, बट कुछ ही महीनों में ऊपर भी आ गई। दूसरा, उनके पास एक्सेस था इंटरनेट का, स्मार्टफोन का, इसकी वजह से जो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स है वो नए आ गए। तीसरा, लॉकडाउन की वजह से वो घर पे थे, टाइम था तो सीखने का। और बहुत इंपॉर्टेंट हमने लर्निंग सीखी थी कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास होनी चाहिए, तो उसकी वजह से भी वो ऑप्शंस ढूंढ रहे थे कि कहाँ से और हमारे पास पैसे आ सकते हैं और पैसे को और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे रीजंस थे। बट इनमें सबसे बड़ा रीज़न जो था, इवन क्रिप्टो की अभी हम बात कर रहे थे, तो क्रिप्टो की तरफ या IPO का बस हमने देखा 2021 में, तो वो भी इसलिए था क्योंकि लोगों को ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो ये जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं, मुझे लगता है इनमें से सर 50% ऐसे हैं जो रेकलेस है, जिनको लगता है कि भाई बस पैसे मिल जाए मुझे, और बस ये ढूंढते रहते हैं कि कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, कौन सी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूँ जो मेरा पैसा डबल हो जाए। लेकिन आई बिलीव इसमें से आधे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भले ही शुरू लेट किया है और अभी किया 2020 के बाद, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंस समझ गए हैं कि भाई सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कितना इंपॉर्टेंट है, और वेल्थ बनानी है तो वो लॉन्ग टर्म में ही बनेगी। और थैंक्स टू इन्फ्लुएंसर्स लाइक अस, हम एजुकेट करते रहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ही आप टिके रहो, पेशेंस होना ज़रूरी है। यू नो सागर, कोई स्टॉक ब्रोकर स्पॉन्सर है क्या इवेंट का? नहीं है ना, तो मैं बात कर सकता हूँ। तो नेहा मैम ने जो बात कही ना कि बहुत सारे ये ब्रोकर्स कह रहे हैं कि डीमैट अकाउंट जितने 7 साल में नहीं खुले उतने 7 महीने में खुले। हमारा ना एक प्रोडक्ट है सिलेक्ट बाय फिनोलॉजी, जहां हम डीमैट अकाउंट कंपैरिजन करते हैं। तो उसका डेटा मैं आपको बताता हूं। डिस्काउंट ब्रोकर्स जिनमें किस ब्रोकर ने माइक बंद किया? बट डिस्काउंट ब्रोकर में अकाउंट ओपनिंग डिस्काउंट ब्रोकर्स जिनमें अकाउंट ओपनिंग फ्री है, उनके 70 से 80% अकाउंट डेड है। फ्री में अकाउंट खुलता है, 500 रुपए का अमेजॉन वाउचर भी मिलता है, कोई क्यों अकाउंट नहीं खुलवाएगा। लेकिन रियल अकाउंट जिनमें ट्रेडिंग हो रही है वो 25% है, बाकी बस नंबर गेम है, वैल्यूएशन बढ़ाते जाओ। बट पंकज सर, क्या आप भी सोचते हो आज का इन्वेस्टर रेकलेस है? हेलो, अभी तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जब प्रांजल ने पूछा कि यहाँ में कितने लोग ऐसे हैं जो 2020 पर
स्टॉक मार्केट में आए हैं तो लगभग जो भी आए हैं 100% 2020 वाले हैं। लेकिन दूसरा जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कितने लोग प्रॉफिट में हैं तो 90% हाथ नीचे हो गए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या रीज़न है कि हमारी एंट्री बिलो 10,000 इंडेक्स पे होती है और आज हम निफ्टी 16,000 पे खड़े हैं और हम कह रहे हैं कि हम लॉस में हैं। इन्वेस्टमेंट ने तो रिटर्न दिया है, जब आपने एंट्री की उसके बाद में इन्वेस्टमेंट ने रिटर्न दिया है, लेकिन इन्वेस्टर को यानी आपको रिटर्न नहीं मिला है। इसका रीज़न क्या है? कोई बता सकता है आप में से कि इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिला है जबकि सेम इन्वेस्टमेंट ने रिटर्न दिया है? कोई आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप बताइए ना कि जब आपने 10,000 रुपये यदि निफ्टी में भी पैसा डाल देते तो आपको रिटर्न मिलता, क्योंकि आज 16,000 है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है, बिहेवियर गैप। ये बिहेवियर गैप क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट ने रिटर्न दिया है लेकिन आपके बिहेवियर ने गलत टाइम पे एग्जिट या गलत टाइम पे एंट्री डिसाइड की है और जो आपने लिया है। इस बिहेवियर गैप को ख़त्म करना ही आज का इम्पोर्टेंट लेसन होना चाहिए, जो इन सब मॉडरेटर्स का काम होना चाहिए या फिर इन इन्फ्लुएंसर्स का काम होना चाहिए कि इन्वेस्टर के बिहेवियर के गैप को फिनिश करें। दूसरी बात, नेहा नागर ने कहा कि लॉन्ग टर्म में सब अच्छा होगा, लेकिन मैं यहाँ इनसे कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में न आप होंगे न मैं होऊंगा तो क्या अच्छा होगा। हमें तो जब हम रहेंगे तब तक पैसा चाहिए, उसके बाद में पैसा चाहिए, तभी तक पैसा चाहिए। 5 साल में पैसा चाहिए, 1 साल में पैसा चाहिए, 6 महीने में पैसा चाहिए। यदि ये चाहिए तो स्टॉक मार्केट आपको वो सब कुछ देता है जो आप चाहते हो। यदि आप इसको सट्टा बनाना चाहते हो तो ये आपको सट्टे की तरह ट्रीट करता है। यदि आपको इसको रियल बिजनेस प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो ये आपको रियल बिजनेस और प्रोफेशन मान के चलेगा। लेकिन यदि आप इसको हॉबी की तरह प्ले कर रहे हो 2-4-50 लाख से या 50,000 से, तो वो आपको वैसा ही समझता है। और हॉबी कभी भी पैसा देती नहीं है, पैसा लेती है। लेती है या नहीं लेती है? तो यदि आप इसको हॉबी की तरह ले रहे हो तो आप मान के चलिए इस यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, आप चाहे इंट्राडे कर रहे हो, चाहे स्विंग कर रहे हो, चाहे पोजिशनल, चाहे लॉन्ग टर्म, हर जगह पैसा है।